सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. If the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. तो हम लोग लेते हैं कि let two triangles are ABC and DEF such that triangle ABC is similar to triangle DEF and area of triangle DEF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है? तो ये ABC है और ये DEF है. अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि as triangle ABC is similar to triangle DEF, this implies that AB upon DE is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF equals to, चलिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक. आल्सो एरिया ऑफ triangle ABC is equals to ऐसा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to area of triangle DEF. This implies that area of triangle ABC, अब इसको आपने ध्यान से समझना है, अपॉन area of triangle DEF is equals to 1. This implies that अगर हम इसकी बात करेंगे, अब ये तो हमें मिल गया 1. हमें ये भी पता है आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होता है?
it is squares of the ratio AB square is to DE square is equals to BC square upon EF square equals to AC square upon DF square. This implies that 1 is equals to AB square upon DE square equals to BC square upon EF square equals to AC square upon DF square. This implies that AB square is equals to DE square. This implies that AB is equals to DE and BC square is equals to EF square क्योंकि रेशियो अगर 1 है तो इसका मतलब BC is equals to EF and AC square is equals to DF square. This implies that AC is equals to DF. Hence, triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency criteria. हमें ये प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है. काइंडली नोट इट डाउन, समझिए, देखिए एंड फिर आगे चलते हैं. DE and F are respectively the midpoints of AB, BC and AC of triangle ABC. ओके, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, राइट, और ये बोलता है कि DE and F are midpoints of AB, BC and CA. ये ABC आपके पास, DEF, ये D इसका मिड पॉइंट है, E is midpoint of BC and A is F. तो ये हमारे पास इसके मिड पॉइंट्स आ गए D, E एंड F. ये बोलता है find the ratio of the areas of triangles DEF through triangle ABC. ओके, अब यहां पे आप देखें, given respectively the midpoints of sides AB, BC and CA triangle ABC. ठीक है, एंड टू फाइंड हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is to area of triangle ABC. हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट. ये हमारे पास आ गया. टू प्रूफ, सॉरी, सॉल्यूशन हम इसका लेते हैं.
DE and F are respectively the midpoints of side AB. Okay. अब देखें हमारे पास बोलता है since D is midpoint of AB and F is midpoint of AC. Therefore, DF is parallel to BC. So DF is parallel to EC. Why so? Line joining midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. Similarly, इसको आप DF is parallel to EC, इसको आप नंबर 1 ले लीजिए. Similarly, we can prove DE is parallel to AC और DE is parallel to FC, इसको नंबर 2 ले लीजिए. From first and second, ध्यान से देखना, from first and second, angle D is equals to angle C. Opposite angle, sorry, पहले हम लिखेंगे ऐसे नहीं. From D first and second, हम लिखेंगे DF is a parallelogram. DFCE is a parallelogram. ठीक है. अब DFCE is a parallelogram आ गया तो therefore angle D is equals to angle C. इसको आप 3 ले लीजिए. अब हमने क्या लिया, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. इसको अब इसी तरह से हम इस वाले को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव. जब आपने एक को प्रूव कर दिया तो दूसरे के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती. वी कैन प्रूव DFEB is a parallelogram. DFEB is a parallelogram. Therefore, angle F is equals to angle B. अब आप लीजिए, now in triangle ABC
in triangle ABC and triangle देखिए यहाँ पे एंगल सी के सामने एंगल डी है, एंगल बी के सामने एंगल एफ है, एंगल सी के सामने एंगल डी है, एंगल बी के सामने एंगल एफ है, ठीक है ना। तो ए बी सी, ठीक, तो हम इसको लेंगे ई एफ डी। ई एफ डी इसलिए ले लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा देखिए एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये प्रूव्ड अबव है। Therefore, triangle ABC is similar to triangle EFD. ये तो हमें पता चल गया। And this implies that AB चले AB upon EF is equals to BD. BD upon BC upon DF is equals to AC upon DE, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं EF upon AB इज इक्वल्स टू DF। इसको उल्टा कर दिया, बस कुछ नहीं किया, इसको उल्टा कर सकते हैं रेशियो को, DE सारी रेशियोज को उल्टा कर दिया, DE अपॉन AC। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से मेरी बात समझना, सभी लोग ध्यान से इसको आप समझेंगे। इसको आप फोर्थ ले लीजिए। अब हमारे पास क्या है, एक और चीज आपके पास होगी यहाँ पे, हेयर EF is or equals to half of AB। अब ये क्यों होगा, EF is equals to half of AB, DF is equals to half of BC, and DE is equals to half of AC, or this implies that AB is equals to 2 times EF, BC is equals to 2 times DF, and AC is equals to 2 times DE। ये बात हमारे पास क्यों हम लोगों ने लिखी, बिकॉज देखें, अब मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे हमने देखा DFCE इज ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब इसके पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं।
और ई उसका मिड पॉइंट है उस लाइन का, तो इसका मतलब डी एफ इज इक्वल्स टू ई सी इज इक्वल्स टू बीई, है ना। डी एफ इज इक्वल्स टू ई सी इज इक्वल्स टू बीई। तो यानी अगर हम बीसी को देखें तो इट इज डबल ऑफ डी एफ, इट इज डबल ऑफ डी एफ, तो हमने वही लिखा, डबल ऑफ डी एफ। दूसरा तरीका है कि हम लोगों ने ना एक थ्योरम पढ़ी हुई है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। तो हम इसको यहां से ये भी लिख सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू EC एंड DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC भी आएगा, यही हमने लिखा। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो हमारे पास यही दोनों चीजें यहाँ पे हम लोगों ने लिखी, है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एक थ्योरम है जो हमने पढ़ी हुई अपनी जूनियर क्लास में, प्रोबेबली 9th क्लास में। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे बात होगी। अब बात करते हैं इनके एरियाज की। 9, अगर आप बात करें यहाँ पे now area of triangle DEF upon area of triangle ABC can be written as area of triangle EFD upon area of triangle ABC is equals to EF square upon AB square is equals to DF square upon BC square is equals to DE upon AC square। अब आप इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। दिस implies that area of triangle DEF upon area of triangle ABC is equals to, आप कोई भी ले लीजिए, EF स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए और ट्वाइस AB को ट्वाइस EF का होल स्क्वायर लिख दीजिए, विच इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स EF स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। सो वो रेशियो क्या आएगी, वो रेशियो आएगी 1/4। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, हमने देखा कि ये कैसे आएगा। तो आपको मैं ना स्क्रीनशॉट्स इसके भेजूंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट्स को से नोट करिएगा, जिसको समझ नहीं आएगा मुझसे कल पूछेगा, ठीक है। आप इसको घर पे अपने नोटबुक के ऊपर पहले खुद से नोट करेंगे, फिर इसके बाद आप मुझे इसका राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने, इसको मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अभी, आप इसको घर पे नोट करेंगे, समझेंगे। जिसको समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछेगा, घर पे इसको करना जरूर है। आई विल चेक योर होमवर्क, आप मुझे होमवर्क करके भेजेंगे और कल हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको जान के इस पर स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चीजें हमें याद करनी पड़ती, रिकॉल करना पड़ता है, इसीलिए मैं इस पर स्लो चल रहा हूँ। तो एक बार इसको करिए, तो फिर हम नेक्स्ट इसके बाद वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा उसमें हम लोग टाइम को कवर अप कर लेंगे, नीड नॉट टू वरी, ठीक है जी। तो आज इतने रखते हैं, आप जल्दी से, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आप उसका बेटा घर पे इसको आपने दोबारा से नोट जरूर करना है। आपके लिए ना एक गुड न्यूज है, पता है, आप गर्ल्स के लिए, आपको पता लगा कि आज एक गुड न्यूज शेयर की गई है।
Do you know that? No, sir. Girls of this group know that what is the सैनिक group? स्कूल वाली, हाँ No, sir. सैनिक स्कूल वाली। नहीं, सैनिक स्कूल तो पुरानी है, अच्छा, आज तो नया कुछ आया है। So क्या? तो क्या? अब गर्ल्स कैन आल्सो ज्वाइन एनडीए। पहले गर्ल्स को आर्मी में जाने के लिए ग्रेजुएशन तक जाना पड़ता था। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स गर्ल्स कैन गो टू द, मतलब दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ एलीट इंडियन आर्मी आफ्टर देयर 12th क्लास एज बॉयज डू। तो बॉयज 12th के बाद जाते हैं, अब गर्ल्स भी 12th के बाद जा सकती हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर गर्ल्स। सर मतलब जो बच्चे सर 12th के बाद एनडीए के पेपर्स मुझे देते ना हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पुत्र, थोड़ा ऊंचा आप करें जरा। सर मतलब पहले लड़के ही 12th के बाद एनडीए के पेपर देते थे, तो अब लड़कियां भी दे सकती हैं। अब लड़कियां भी दे सकती हैं। ओके सर। So this is a good news for all of you। इसलिए आप सभी गर्ल्स मुझे पार्टी करवाएंगे। ओके सर, सर पक्का। ठीक है, ओके सर। यस चलिए सर। फिर बाय फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद।